ପତି ଠାରେ ପରମାତ୍ମା ନ ଦେଖି ଦେଉଳରେ ଦିଅଁ ପୂଜନ୍ତି ନୀତି। ପତିଙ୍କ ବଚନ କରି ଅମାନ୍ୟ ପତିଙ୍କୁ ଭଣେ ଯେ କଟୁ ବଚନ। ଅଭାଗିନୀ ସେହି ନାରୀ ଯେ ଦୁହିତା ସେ ପରା ଦୁଇ କୂଳ ହିତା। ଦୁଃଖ ତାର ଅସୁ ମାରି ଯେ ଦୁହିତା ସେ ପରା ଦୁଇ କୂଳ ହିତା। ଦୁଃଖ ତାର ଅସୁ ମାରି ଯେ। ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବଡ଼ ମହାନ ଭାଇ। ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଯୋଡ଼ନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି, ଏ ସଂକଳ୍ପର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଭାଇ? ଏ ସଂକଳ୍ପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁହେଁ ଏକାଠି ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା, ଦୁହେଁ ଧର୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରଖି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ କାମକୁ ପାଳନ କରି ସନ୍ତାନ ବା ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା। ଦୁହେଁ ପୁଣି ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରି ମୋକ୍ଷ ଦିଗରେ ନିର୍ବାଣ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାଗିନୀ ହେବା, ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେବା। ସଂକଳ୍ପ ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଏ, ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାନି। ପରସ୍ପରର ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ବୁଝିବା। ଜଣେ ଅବୁଝା ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସ୍ୱାମୀକି ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀକି ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ, ସ୍ୱାମୀକି ରୋଗ ହେଲେ, ସ୍ତ୍ରୀକି ରୋଗ ହେଲେ କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବାନି। ପରସ୍ପର ସହିତ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଧରିକି ରହିଥିବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସଂସାର ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରେ ସଂସାର ଚାଲେ। ଏମିତିକା ଗୋଟିଏ ସଂସାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜଗତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଠାକୁର ସ୍ୱୟଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ କୈଳାସପତି ଭୂତ ଭାବନ ଗଙ୍ଗାଧର ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରଙ୍କ ସହିତ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରଙ୍କର ବିବାହ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ହିମାଳୟ ଭଗବତୀ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପିତା ସ୍ୱୟଂ ହିମାଳୟ, ଯିଏ ହିମବନ୍ତ, ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଦେବି? ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ତୁମର ସମସ୍ତ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ବାଲିଟିଏ ପାଣି ଢାଳି ଦେଲେ ସେଥିରେ ବା ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ମେନକା, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମା, ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାଗିବି ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଚାହିଁଲେ, କହିଲେ, ମା କ'ଣ ମାଗିବ? କହିଲେ, ନାଥ ଉମା ମମ ପ୍ରାଣ ସମ ଗୃହ କିଙ୍କରି କରେଉ। ନାଥ ଉମା ମମ ପ୍ରାଣ ସମ ଗୃହ କିଙ୍କରି କରେଉ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଭୋଳା ଶଙ୍କର, ଉମା ମୋର ପ୍ରାଣ, ତାକୁ ଘରର ଦାସୀ ପଛେ କର, ତାର କୌଣସି ଭୁଲ ହେଲେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଶଙ୍କର ସଂସାରକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। କନ୍ୟା ବିଦାୟର ସମୟ ଆସିଗଲା ଭାଇ। ସଂକ୍ଷେପରେ ସବୁ ବିଧି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଦେବତାମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ସାହାନାଇରେ କନ୍ୟା ବିବାହର କରୁଣ ସ୍ୱର ମାତା ପିତା ପରିବାର ବର୍ଗ ହିମାଳୟବାସୀ ସମସ୍ତେ ରୋଦନ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନୟନରୁ ଧାର ଧାର ଲୋତକ ଝରୁଛି। ଝିଅଟିଏ ବିଦାୟ ହେଲେ ପିତା ମାତା ପରିବାର ବର୍ଗ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ସକଳ ହିମାଳୟବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ବତୀ ମାଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ରୋଦନ କଲେ। ଆଖିରେ ଲୁହ, ଛାତିରେ କୋହ, ଅନ୍ତର ଫଟେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ମା ପାର୍ବତୀ ବିଦାୟ ନେଲାବେଳେ ନିଜ ମା ମେନକାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମେନକା କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ମା ମେନକା ରୋଦନ କରି କହିଲେ, ଝିଅଲୋ, କତ ବିଧି ସୃଜି ନାରୀ ଜଗ ମାହି। ପରାଧୀନ ସପନେ ହୁଁ ସୁଖୁ ନାହିଁ। ବିଧାତା ନାରୀକୁ କାହିଁକି ଏମିତିକା ସୃଷ୍ଟି କଲା? ସାରା ଜୀବନ ସେ ପରାଧୀନ,
जीवन रे तार सुख नहीं। नारी जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। पिला बेले माता पितार अधीन होउची नारी, जौवन रे पतिर अधीना होउची नारी, वार्धक्य संतान मानकर अधीना होउची नारी। सारा जीवन से पराधीन पराधीन। झील को धरी विकल रुदन करुचंती, उमा को धरी कांदुचंती माता मेना। हृदय रे लगाई मेनका कहले, झीलो गोटे कथा तू मन रखिथबु माँ, करे हु सदा शंकर पाद पूजा। नारी धर्मु पति दे न दूजा। पति होउचंदी परमेश्वर, पति होउचंदी परकालर देवता। केते बड़ राजपत्नी, केते बड़ राणी, हिमालयंकर पत्नी, स्वयं माता मेनका, पार्वती मांकर आद्याशक्तिंकर जननी। एते बड़ सुंदरी गुणवती कन्या को पाई, एते बड़ घरर घरणी होई, एते बड़ राजांकर राणी होई से निजर झील को बुझौचंती, झीलो पति होउचंदी परमेश्वर, यह नारीर धर्म। पति होउचंदी यह परकालर देवता, स्वयं संसार सार ठाकुर होउचंदी से। मन कर्म वचन रे शिवंकर चरण को पूजिबु झील। जीवन गोटे गंगार धारा परी अंके बंके होइकी चलीची। मु कहूनी भाई ये कथा भगवती पार्वती माँ को गोटे गर्भधारिणी माँ बुझौची। कहला झीलो गंगार धारा परी अंके बंके हो चलीची मनीष जीवन। गंगा जेते अंके बंके होकर गले कौन तार पवित्रता नष्ट हुए। तेणु हे झील, जीवन रे सुख आसिबो, जीवन रे दुख आसिबो, संपत्ति आसिबो, विपत्ति आसिबो, जीवन रे रोग आसिबो, व्याधि आसिबो, जीवन रे अभाव आसिबो, अनटन आसिबो, संकट आसिबो, विघ्न आसिबो, आपद आसिबो, विपद आसिबो। खाली अनुकूल परिस्थिति नुहे, प्रतिकूल परिस्थिति मध्य आसिबो। जीवन रे जेते मोड़ आसिले मध्य तार पवित्रता उपरे के आंच न आणु। एतिके जी बुझीगला ता जीवन धन्य हो जीव झील। हाँ, यही कथा को श्रवण करी कांदुचंती माँ जगत जननी पार्वती, जे जगतर मही असीमा। तेणु हे झील, गंगारे मैला पड़िले मध्य गंगा स्वच्छ, गंगा पवित्र। जेते प्रकार अशौच, जेते प्रकार अपवित्रता, जेते प्रकार असना गंगारे छाड़ीदेले मध्य, गंगारे धौत करदेले मध्य, गंगारे मैला पड़िले मध्य गंगा सर्वदा स्वच्छ और पवित्र। जीवन जो मोड़ देकरी जाऊ, पवित्रता उपरे आंच न आसु झील। हे झील, जीवनटा रेलधाणा नुहे जे समान चलिबो। काहारी जीवन समान नुहे। एठी जीवन रे दुख आसिले काहाकू जणाओ नाही। घरे बसी अश्रुपात करो, काहाकू कुह नाही। दुख जहाकू कहबो से दुख शुणी दुखी होइजिबो। दुख को कहले बा दुख किए नबो, समते सुखर साथी, दुखर साथी केही नुहे। तेणु हे माँ, तो बापा होउचंदी हिमालय, तू हिमालयंकर कन्या। हिमालयंकर दृढ़ता, तो बापांकर दृढ़ता को तू देखुथा। जेते बात्या आसू, जेते महाबात्या आसू, जेते प्रलय आसू, जेते महाप्रलय आसू, तो बापा स्थिर धैर्यर सहित दृढ़तार सहित अछंती। कौनसी बात्या, कौनसी बन्या तो बापांकर किछि बिगाड़ी पारे नाहंती। समस्ते हार मानिगले तो बापांकर दृढ़ता पाखरे। तू नारी, तू होचु कन्या, तू होचु दुहिता, तू दुई कूलर हिता। तोरी भितर दृढ़ता थाऊ, धैर्य थाऊ। कौनसी प्रकार विपत्ति, कौनसी प्रकार दुख जंत्रणा जेमिति तते तोर कर्तव्य पथरु अपसरी न दब। तो बापा जेमती अचल आ अटल, तू सेमती धैर्य, नीति, न्याय, पतिव्रता धर्म, पवित्रता धर्म को पालन करने क्षेत्र में अटल आ अचल रहिबु झियो। तेबे जाहि तो जीवन रे सुख पाइबु। एतिके शुणिला परे मार हृदय रे मथा को रखी पार्वती कांदी पकेइले। तत्क्षणात हिमालय पहुँचिले सेठी रे बापा। पार्वती तांको प्रणाम कले। पार्वती करुण स्वर रे कहिले, बाबा मु जाउछि बाबा। हिमालय कांदी उठिले। आम संस्कृति रे कन्या विदाय होउछि बड़ दुखदायक। बापा केबे कांदी नथिले भी कन्या विदाय दिन अवश्य कांदे। किए कहे बापार हृदय कठोर। माँ कांदे, बापा भी कांदे। माँ अंतरे कांदे, बापा भी अंतरे कांदे। मार अंतरर क्रंदन ध्वनिर जो तरल जलीय पदार्थ लुह रूपरे नयनरु पदाकू झरी पड़े। किंतु बापांकर सेई कठोर हृदय बोली जहाकू आमे कहूचे, तारी भितरे कन्या पाई पुत्र पाई झरुथबा लोतकोटी जमाट बांधी तारी भितरे सुखी जाए जे। अन्य माने कहंती पितार हृदय होउची कठोर।
आज किंतु बापा कांदी पकेइले। झील तांकर विदाय नौची तांकर प्राणप्रिय कन्या। से न कांदी रही पारलेनी। पार्वती पिता को बारंबार भेटुथिले। पिता पुत्रीर संबंध, बापा आउ झीर संबंध बड़ अद्भुत भाई। आर्यवर्तर संस्कृति रे कन्या पितार देखा रखा करे। पुत्र बेईमान हो पारे, स्वार्थपर हो पारे, धोकाबाज हो पारे। चतुर्थ अवस्था पिता मातांकर सेवा करि न पारे, तड़ी दे पारे, अलगा भिन्न होकर खाई पारे, निजर पत्नी सहित विदेश रे रही पारे, पिता माता को पर करि पारे, सेवा न करि पारे। किंतु कन्या पितार देखा रखा करे, पितार भल मंद बुझे। शाशु घरे थाई मध्य कौन सी उपाय रे से पितामातार खबर रखे। कन्या सबुठार बेसी भल पाए तार पिता को। पिता आराम करंतु ये कथा आउ किए चिंता करू के न करू, कन्याटी चिंता करि थाए। कांदी कांदी हिमालय कन्या को हृदय रे लगाउथिले। कन्यार विदाय हैला। समस्ते गाँ बाहर को गले। पार्वती डोली रे बसी जाऊ थांती, पछकु कणे कणे चाहू थांती। दृष्टि समस्त ऊपर थिले मध्य पिता को बारंबार चाहू थांती। माँ को गला बेले कहले, मालो मो बापांकर देखाशुना करुथिबो, मो बापांकर जेमती किछि न हुए, बापांकर खाइबा पीवा भल मंद बुझुथिबो। कांदुचंती बापा हिमालय। आखिर धार धार लोतक झरुची। झील को आखिरे चाही पारु नाहंती। आज मंडप शून्य, आज घर शून्य, आज संपत्ति चलीगला। कन्या होची गृहर बड़ संपत्ति। एते बड़ संपत्ति की विदाय देई और अधीर होई कांदुचंती, निजे को संभाली पारु नाहंती निजे बापा हिमालय। यापर भगवान शंकर सहित माता पार्वती सुखरे कैलाश रे पहुँची गले। देवता माने निज निज पुर को बाहुड़ी गले। धीरे धीरे वातावरण शांति भी हैला। शिव पार्वती जगतर पिता माता, जगतर त्राणकर्ता, त्रिताप को हरण कला वाला ठाकुर। प्रत्येक भक्त मानकर सी होचंदी हृदयर आराध्य देवता। जोगीर दाम्पत्य जीवन को कथारे किए वर्णना करियो भाई। तांकर दाम्पत्य जीवन धन्य। एबे आरंभ होला पति पत्नींकर, भगवान शंकर एवं पार्वतींकर दाम्पत्य जीवनर कथा। संत बिटप सरिता गिरी धरनी, परहित हेतु सबन के करनी। संत बोले संथ, वृक्ष, सरिता बोले नदी, गिरी बोले पर्वत, धरणी बोले पृथ्वी। संथ, वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी एमाने सबुबले परोपकारी। पार्वती पर्वतंकर कन्या, से परोपकारी। भगवान शंकर सहित माता पार्वतींकर दाम्पत्य जीवन आरंभ होला। एवं दाम्पत्य जीवन रे दिने भगवान शंकर को अति आनंदर देखी, अति सुखर देखी, छलना रहित कौन सी छलना को न रखी निजर संदेह, निजर अहंकार को केमिति नाश करी भगवान श्रीरामंकर भक्ति प्राप्ति हबो, ए कथा को नहीं हाथ को जोड़ी प्रश्न पचारुचंती। ये कथा शुणिबा, एठी वाणी के विश्राम देवा। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।